अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 7 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश चैप्टर 9 की कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में पार्ट ए है अंडरस्टैंडिंग द पोइम, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन ए है इन व्हाट वे इज द टाइटल ऑफ द पोइम अ गुड वन। इसका आंसर है द टाइटल इज अ गुड वन बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टेड इन एवरी लाइन ऑफ द पोइम इंक्लूडिंग द लास्ट लाइन, in which the poem is summarized by yet another no word. November. November is in the autumn season when summer has come to an end and nature is preparing for winter. The negative no tells us that everything is coming to an end as far as plants are concerned. Question B है the order pattern of rhymes at the ends of the lines of a poem or verse is called rhyme scheme. Is there a rhyme scheme to the poem? If yes, please identify. इसका आंसर है there is no regular rhyming pattern. Some of the lines are rhyming couplets. But this is not constant. We could break it up like this. पहला है A A B C C B. Second है A A B B C C D D D. थर्ड है A A B B C D C C D. C क्वेश्चन है which words in the poem tell us about the following. फर्स्ट है टाइम्स ऑफ डे. अगर हम टाइम्स ऑफ डे की बात करें तो इसका होगा मॉर्न, नून, डॉन, डस्क, प्रॉपर टाइम और आफ्टरनून. सेकंड है रोड्स. रोड्स की बात करें तो इसका है रोड, स्ट्रीट, अदर साइड द वे, रो, क्रेसेंट्स, वे, रिंग. थर्ड है मोशन और इंट्रैक्शन. इसका होगा इंडिकेशंस, रिकॉग्निशंस, कर्टसीज, शोइंग, नोइंग, ट्रैवलिंग, लोकोमोशन, इंकलिंग, नोशन, गो, मेल, पोस्ट, न्यूज़, cheerfulness, healthful ease और comfortable feel. फोर्थ है weather conditions और geographical features. इसका है sun, moon, sky, earthly view, land, ocean, coast, park, warmth, shade और shine. लास्ट है living creatures and plants. इसका है people, company, nobility, member, butterflies, bees, fruits, flowers, leaves, birds. Next है these questions are more challenging. Discuss them first. जिसमें D है how would you describe the general picture painted by the poet? Is it a cheerful one? इसका आंसर है the poem describes a month November in late autumn in which there are a lot of negativities indicated by no. The poet describes this season as being one without warmth or cheerfulness. It has none of the other aspects that feature in some other months of the year. However, he does this in a cheerful way, so the poem is not depressing or sad. Don't forget the poem describes a typical British or Western season, autumn or fall, just before winter sets in. There are no trees on the leaves and the animals have migrated or gone into hibernation. People do not go out as much because of the cold. E है do you think the poet has a good sense of humor? Why? इसका आंसर है although the poem is full of negative statements, the poet still manages to make it sound fairly cheerful. The rhyming couplets, the use of the same word to start each line, and the pace at which the poem moves all help to make it cheerful. The last line shows he has humor. Next है question number 2. Answer the following with reference to context. इसमें A question है what is meant by T other side the way. इसका आंसर है it literally means the other side of the road. It is being obscured by the bad weather. B है why do you think the phrase no go is put in inverted commas while others
Example, no mail, are not. Is there any and other expression in inverted commas? इसका आंसर है no go is in inverted commas because it is what was said by the transport authorities. The other phrases are not quotes except for T, other side of the way, which is in inverted commas because it is a quote of a colloquial phrase. C है what does the ring refer to? इसका आंसर है the ring is a circular course in Hyde Park in London used for riding and driving. D है comment on the phrase no afternoon gentility. इसका आंसर है gentility refers to people who are courteous and well mannered and who also belong to the upper classes when out walking. Such people would greet each other. This is not evident at this time because it is November and very cold, so nobody is out walking and greeting or talking to each other. नेक्स्ट है पार्ट बी, वर्किंग विद वर्ड्स, जिसमें क्वेश्चन 1 है फाइंड वर्ड्स इन द पोइम विच मे बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग वे. आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने पोइम से कुछ ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जिनका ताल्लुक इन सेंटेंसेस से हो. मतलब उन वर्ड्स का मीनिंग और इन सेंटेंसेस का मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता हो. जैसा कि इसमें पार्ट ए है, द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. ऐसा सितारा जो सोलर सिस्टम के बिल्कुल दरमियान में हो वो सूरज होता है, तो इसका आंसर होगा द सन. बी है द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट. अर्थ का कुदरती सैटेलाइट मून होता है यानी चांद होता है, तो इसका आंसर है द मून. सी है एप्रोप्रिएट और करेक्ट, मतलब मुनासिब या बिल्कुल दुरुस्त, तो इसका आंसर है प्रॉपर. नेक्स्ट है डी, द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट, रोशनी की पहली झलक इन द स्काई, आसमान में. एज द सन राइजेस, जैसे कि सन निकल रहा हो, जब दिन का आगाज़ हो रहा हो तो सूरज निकल रहा होता है. वो कौन सा वक्त होता है? वो वक्त डॉन का वक्त होता है यानी सुबह का वक्त, तो इसका आंसर है डॉन. नेक्स्ट है साइंस और सिग्नल्स यानी निशान या इलामत, तो इसका आंसर है इंडिकेशंस. नेक्स्ट है वेल नोन, मतलब बहुत अच्छे तरीके से जानना, कॉमनली सीन और हियर्ड, जिसे मतलब आमतौर पर देखा हो या सुना हो. इजीली रिकॉग्नाइज्ड, जिसकी हम आसानी से पहचान कर लें, इसका आंसर होगा रिकॉग्निशन, मतलब पहचान करना. नेक्स्ट है एच, अ वैग्यू आइडिया और सस्पिशन अबाउट अ फैक्ट, पर्सन और इवेंट. इसका आंसर होगा इंक्लिंग. इसका मतलब है कि कोई ऐसा आइडिया जो कि गैर वाज़ेह हो, जिसका मतलब हमें इतना ज़्यादा ना पता हो. अब ये आइडिया किसके बारे में हो या ये फैक्ट किसके बारे में हो, किसी भी शख्स के बारे में या किसी भी इवेंट के बारे में हो. अब इसका मतलब जो है इंक्लिंग से काफ़ी मिलता जुलता है, तो इसका आंसर होगा इंक्लिंग. नेक्स्ट है कंटेंटेड एंड रिलैक्स्ड. इसका मतलब है इत्मीनान करना या आराम करना. अब अगर हम देखें कंफर्टेबल वर्ड को, तो कंफर्टेबल इसके मीनिंग से बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका आंसर होगा कंफर्टेबल. नेक्स्ट है लिम्ब. लिम्ब का मतलब है अज़ू या द पार्ट ऑफ बॉडी यानी बदन का हिस्सा. तो अगर हम इससे मिलता जुलता वर्ड देखें तो मेंबर इसके मीनिंग से मिलता जुलता ही है, तो मेंबर इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है एन इंसेक्ट ऑफ द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा. अब ऐसे इंसेक्ट्स जिसका ऑर्डर लेपिडोप्टेरा जैसा हो. अब लेपिडोप्टेरा क्या होता है? लेपिडोप्टेरा ऐसे इंसेक्ट्स को कहते हैं जिनके पर होते हैं, ऐसे ऑर्डर वाले इंसेक्ट्स जिनके पर होते हैं. अब जैसा कि तितली, तो अगर हम देखें तो हम इसका आंसर बटरफ्लाई भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बटरफ्लाई. नेक्स्ट है हीट, अफेक्शन, फ्रेंडलीनेस यानी गर्माहट या मुहब्बत या दोस्ताना रवैया. इसका मिलता जुलता वर्ड देखें तो हम यहाँ पे वार्मथ लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा वार्मथ. नेक्स्ट है पार्ट डी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड. आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इसे ऊंची पढ़ना है. बी केयरफुल टू स्ट्रेस द करेक्ट सिलेबल
in each word. तो सबसे पहले है indications, ठीक है, हम इसे indications पढ़ेंगे. नेक्स्ट है recognitions. थर्ड है familiar. नेक्स्ट है courtesies. नेक्स्ट है locomotion. नेक्स्ट है notion. फिर है cheerfulness, afternoon, gentility, nobility, butterflies, November. Next है question number 2. Pronounce these words carefully. Say them aloud. यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इनकी प्रोनाउंसिएशन करनी है और इन्हें ऊंचा कहना है. पहला है FOREIGN. इसे हम जब प्रोनाउंस करेंगे तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है फॉरेन, ना कि फॉरिन, ठीक है. फॉरेन इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. नेक्स्ट है WARMTH. हम इसे वारम्थ नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें आर को साइलेंट कर देंगे. वार्मथ इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ WARMTH. थर्ड है COMFORTABLE. हम इसे कंफर्टेबल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ COMFORTABLE इज कंफर्टेबल. नेक्स्ट है FLOWERS. हम इसे फ्लावर्स इस तरह नहीं पढ़ेंगे, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज फ्लावर्स. लास्ट है FRUITS. अब इसमें हम इसे फ्रूट्स नहीं पढ़ेंगे, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ FRUITS इज फ्रूट्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. नाउ से दीज पेयर्स ऑफ वर्ड्स अलाउड एंड नोट दैट द फर्स्ट वर्ड रिपीटेड इन पार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ड मे नॉट नेसेसरली बी प्रोनाउंस्ड इन द सेम वे. यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स दिए गए हैं. अब पहला वर्ड जो है वो सेकेंड वाले वर्ड में रिपीट हो रहा है, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं होगी. जैसे कि सबसे पहला वर्ड है फॉर, हम इसे फॉर पढ़ेंगे और सेकंड वाले को फॉरन पढ़ेंगे. नेक्स्ट है वार, वार, और सेकंड वाला वर्ड क्या है वार्मथ. नेक्स्ट है फ्लो, फ्लो, एंड सेकंड है फ्लावर्स. फोर्थ है सेंट, फर्स्ट वर्ड है सेंट और इसका सेकंड वर्ड क्या बन जाएगा क्रेसेंट. फिफ्थ है स्टैंस और इसका सेकंड वर्ड क्या बनेगा डिस्टेंस. सिक्स्थ है फोर्ट, फोर्ट एंड सेकंड है कंफर्टेबल. सेवंथ है कोर्ट, कोर्ट और इसके साथ वाला जो वर्ड है इसका बनेगा कर्टसीज. अब देखें इन दोनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन कितनी ज़्यादा मुख्तलिफ है, जबकि पहला वाला जो वर्ड है वो सेकंड वाले वर्ड में भी रिपीट हुआ है, बट इनकी प्रोनाउंसिएशन एक दूसरे से डिफरेंट होगी. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कर्टसीज. नेक्स्ट है कग, सेकंड वर्ड होगा रिकग्निशन. नेक्स्ट है लायर, ठीक है, हम इसकी प्रोनाउंसिएशन लायर करेंगे. सेकंड वर्ड होगा फैमिलियर. नेक्स्ट है रेन और इसका अगला वर्ड होगा फॉरेन. तो आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.